Hello children, good morning. Jai Swaminarayan. My name is Pravina from Atmi Green School and I'm going to teach you English. Okay beta, so finally, this is our last chapter in English grammar. I mean the 16th chapter, can and may, in your grammar book. Okay, so just wait for a minute. Yes. Okay. For the PT3. Okay, so we totally completed 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, टोटली हमने 9 चैप्टर्स कंप्लीट किया है. आई मीन अलोंग विद दैट, आई मीन जो 16 चैप्टर को मिलाकर. तो हमारा जो ग्रामर बुक है आज फाइनली कंप्लीट होने वाला है फॉर द PT2 एंड फॉर योर कोर्स बुक में तो Willivu learns to make truth is over and Hachiku is also over. Colin is a poem and maybe it's completed in 2 classes. I mean one is for explanation and the another day is for the question answers. We have question answers or not in the Colin? Yes, I mean this is a Colin. Yes, and the question answers is also there. And okay, so one day is for the lesson explanation and the another day is for the poem appreciation. I mean the question and the answers. Then next, Annalisa and the Giant. Oh my god, and it takes around 2 classes, 2 3. Okay, yes. तो 4 to 5 क्लासेस में हमारा इंग्लिश भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा. आई मीन वी आर रेडी फॉर द PT2 एग्जामिनेशन. तो okay, so let's start this chapter. Okay, can, may. Okay beta, तो can and may, when we are going to use this while talking. So here, so can you see here in the screen? So GT, I mean the robot is flying here. So that is why he is saying that woohoo, look at me, can fly. I can fly. तो ये बता रहा है woohoo, look at me, I can fly बोलकर GT हमें बोल रहा है. So next, तो वहाँ पे जो बर्ड है, I mean bird, वो बोल रही है wow grandma, GT is having so much fun, may I try paragliding too? तो wow grandma, तो GT तो बहुत मजा ले रहा है. तो may, ओके, सो may I paragliding too, तो मतलब कि मैं भी पैराग्लाइडिंग कर सकता हूँ. दैट मीन्स ही इज आस्किंग द परमिशन, may I, ओके. सो यहाँ पे ये हो रहा है. सो नेक्स्ट, ग्रामा. What is the heroine of this book? Grandma is saying here, ha, why do you want to paraglide? Silly, you can fly on your own, can't you? तो grandma बोल रही है, अरे तुझे पैराग्लाइडिंग किसके लिए, तू तो फ्लाई कर सकता है. यू कैन फ्लाई, तू तो कर सकता है वो काम बोलकर. जब हम कुछ मतलब कि जब भी हम सेंटेंस में अगर वो काम हो सकता है तो हम उसमें कैन ऐड करते हैं. अगर वो नहीं हो सकता है तो हम उसको कांट याद करते हैं. कांट मीन्स कैनॉट. ओके, तो हम यहाँ पे ये 2 वर्ड्स का यूज कर रहे हैं. ओके, कैन मीन्स कर, जब हम काम कर रहे हैं या कर सकते हैं वो. एंड देन कांट मीन्स जब हम वो काम नहीं कर सकते. ओके, सो और मे मीन्स, that means we are asking the permission, like may I try, may I go, may I eat. ओके, सो इस तरीके का जो जब हम अपने बारे में अगर वो मतलब कि कुछ बताना हो तो तब हम बोलेंगे may I यूज करेंगे. सेम लाइक एज दैट वे, अगर हम वो काम कर सकते हैं तो हम वो बोल सकते हैं कि कैन आई डू, मतलब कि कैन आई डू, या फिर मे आई, मतलब सॉरी कांट, आई कांट डू दिस होमवर्क. ओके, यहाँ पे तो या इस तरीके का हमें यहाँ पे कैन और मे के बारे में डिफ्रेंसिएशन हमें आवर हीरोइन ग्रामा की वजह से हम यहाँ पे मिल गया है. सो नाउ कैन,
So we use can to say that we have the ability to do something. तो हमारे पास वो हिम्मत है, we have the ability to do the anything, है ना? तो तब हम can use करते हैं. For example, I can run very fast and he can lift the heavy bag and she can dance ब्यूटिफुली. तो तब हम मतलब कि वो काम कर सकते हैं, तो तब हम बोल सकते हैं can. Okay, so here's given the some of the examples. So look at here. Look at Mr. Show-off, the big brown bear. He says he can do many things. Do you think he is speaking the truth? Tick the box if you think he is right. Okay, तो हमें यहाँ पे टिक करना होगा अगर वो काम कर सकता है या नहीं, क्योंकि ये मिस्टर शो ऑफ तो बहुत शो ऑफ कर रहा है, ही शो, है ना? तो मतलब कि वो बोल रहा है he says he can do many things. वो बोल रहा है कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ. तो चलो अभी वो क्या क्या कर सकता है या नहीं है, then we are going to decide. Okay, so I can hit a ball better than Sachin. Oh, yes, Mr. Shoaff, you can hit the ball better than the Sachin. Is it true? No, absolutely not. सचिन तो सचिन ही मार सकता है ना? तो बेयर मार सकता है सचिन की तरह बॉल? No, so that is why I kept it wrong here. So in the second one, I can sing better than Sonu Nigam. No, absolutely not. सोनू की आवाज कहाँ है और तुम्हारी जो ऐसी आवाज कहाँ है, गा 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 बोलकर, है ना? So that is why I kept it wrong that too. So next, I can fly. Yeah? You can fly, bear? No. Mr. Show-off is showing so much, है ना? तो वो तो बहुत कुछ बोल रहा है. No, that is wrong. So the fourth one, I can get fresh honey from the trees. Yes, this one you can do it, है ना? You can do it. तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? You can do it. तो ये तो तुम कर सकते हो. You can do it. So that is why I kept it right here. So I can live happily with my friends. तो यहाँ पे आपको सोचना होगा कि बेयर है तो ये फ्रेंड्स के साथ आराम से रह सकता है या नहीं है. ओके बेटा, तो मुझे तो लिटिल कंफ्यूजन था कि मतलब कि रह सकता है या नहीं है, इसलिए मैंने तो बॉक्स खाली छोड़ दिया है. अगर आपको लगता है कि आपने जो ये बेयर है, तो आप देखो अगर इतने सारे जो शो ऑफ कर रहा है तो उसके साथ कोई फ्रेंडशिप करेगा? मुझे तो यही लगता है कि मैं तो नहीं करूँगी. इतना सारे जो शो ऑफ दिखा रहा है बेयर तो, है ना? सो आई कैन कुक स्पैगेटी. अच्छा, नो, तुम तो खाली सिर्फ खाने वाले में दिख रहे हो, बनाने वाले में नहीं. तो इसके लिए मैंने उसको भी रॉन्ग कर दिया है ना? तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो बेयर है सब जगह पे आई कैन आई कैन आई कैन आई कैन बोलकर यूज कर रहा है. इसका मतलब वो सब कुछ वो कर सकता है बोलकर बता रहा है ना? तो इसके लिए मैंने जो जो वो कर सकता है मैंने वही आपको वहाँ पे रॉन्ग किया है, और वो जो कर सकता था वो मुझे वो एक ही पता है, इसके लिए मैंने वहाँ पे टिक किया है. ओके बेटा? So next here we use cannot or can't. तो अगर हम cannot भी लिखते हैं तो that is also a right, and हम can't CAN apostrophe T, ओके, तो भी वो right ही होगा. ओके, तो दोनों में से हम कोई एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं. ओके, we use cannot or can't to say that we don't have the ability to do something. We don't have the ability to do something. तो हमारे पास वो होता ही नहीं है, वो हिम्मत ही नहीं है कि वो काम करे. जैसे कि एग्जाम्पल्स दिया है, आई कैन नॉट फ्लाई, तो हम तो उड़ सकते हैं? नो, इट इज इम्पॉसिबल दैट वी कैन नॉट फ्लाई. तो इसके लिए जब हम वो काम कर नहीं सकते तो देन ओनली वी कैन यूज कांट हियर. ओके बेटा? सो आई कैन नॉट फ्लाई और आई कांट फ्लाई. नेक्स्ट, आई कैन नॉट लीव अंडर वाटर. तो आप अंडर वाटर में रह सकते हैं? नहीं. सो दैट इज वाई आई कैन नॉट लिव अंडर वाटर, या फिर आई कांट लिव अंडर वाटर. सो नेक्स्ट, वी कैन नॉट लिव ऑन मार्स एंड वी कांट लिव ऑन मार्स. दोनों में आंसर करेक्ट होगा. आई मीन इफ इट इज कैन नॉट ऑल्सो इट्स राइट, एंड इफ कांट ऑल्सो इज ऑल्सो राइट. ही कैन नॉट रीड ग्रीक, ही कांट रीड ग्रीक. तो इस तरीके का जो हम काम नहीं कर सकते हैं तब हम उसमें कैन नॉट, आई मीन CANNOT, कैन नॉट,
RCANT can't, ये हम यूज करना होगा. ओके, so here is a list of a few activities. How many of these can you do? Use the words in the box to say 2 to 3 activities you can do and 2 to 3 activities you cannot do. Write these sentences in the space below. जो आपको यहाँ पे जो हिंट बॉक्स दिया है तो उसमें के जो वर्ड्स हैं हम वो यूज करते हुए हम यहाँ पे 2 to 3 एक्टिविटीज जो हम काम कर सकते हैं, आई मीन वी कैन डू इट, जो वो काम हम वहाँ पे लिखना है. एंड वैसे ही हम वो उसमें से जो काम नहीं कर सकते हैं वो हमें वर्ड्स को भी 2 to 3 हमें नीचे लिखना होगा. ओके, सो द फर्स्ट वन इज आई कैन ऐड नंबर्स. यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि हाँ पहले हम ये हिंट बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है first we study that. Okay, so ride a bicycle, cook an omelette, send an email, add numbers, talk in 3 languages, sew a button, swim, play games on the computer, tie my shoelaces, grow plants in pots. Okay, so these are all the hint boxes that we have given here in the textbook. So we are using these words for writing the 2 to 3 activities that we can do and the 2 to 3 activities that we can't do. Okay, so here I can add numbers, तो मैंने वो लिख दिया है, I mean वो already लिखा हुआ है. And the next I can ride a bicycle. आप तो बाइसाइकिल में चला सकते हो, मतलब कि आप मेरे जगह पे रखकर मत सोचना बेटा कि मतलब कि ऑमलेट कुक कर सकते हैं या फिर हम मतलब कि और क्या क्या था कि 3 लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं, नहीं ना. तो हम तो जो नहीं था मतलब कि आपके बारे में सोचकर मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखा है. ओके, तो आप स्विम कर सकते हो, तो आप राइड ए बाइसाइकिल कर सकते हो, तो इसके लिए मैंने वहाँ पे आई कैन पे लिखा है. एंड आई कैन नॉट टाई माई शू लेसेस. आपको शू लेसेस आता है टाई करना, तो वेल एंड गुड. अब आप मतलब कि मेरा यहाँ पे सोच के मैंने यहाँ पे लिखा था. अगर आपको लगता है कि ये नहीं मतलब कि अगर मैं स्विम नहीं कर सकता हूँ मैम, तो आप दूसरा कर सकते हैं, आई कैन प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. तो अगर आपको वो लिखना होगा तो आप बेफुजुल से लिख सकते हैं बेटा. ओके, सिर्फ ये आपको एग्जाम्पल बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था. आप वो जो हिंट बॉक्स में, ओके, सो वॉट एवर द हिंट बॉक्स दैट हैज गिवन देयर, सो वो आपको यूज करते हुए वो वर्ड्स को आप खुद से भी बना सकते हैं. ओके, so next here I cannot tie my shoelaces or I can't tie my shoelaces. Okay, so I cannot cook an omelette and I cannot talk in 3 languages. मतलब कि मैं तो बात कर सकती हूँ मतलब कि तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, तो लेकिन आप बात कर सकते हो यानी दैट आई डोंट नो. तो इसके लिए जो आप हिंट बॉक्स है वो यूज करते हुए आप अपने जो सेंटेंसेस है आप बना लेना. ओके, so next may. Okay, we use may to ask someone permission to do something that we want to do. जब हम वो काम कर सकते हैं तो जब हम वो परमिशन पूछते हैं, I mean कि may I go outside to play and may I eat, okay, may I come in. तो आप हर बार कैसे पूछते हो जब भी आप बाहर जाते हो तब क्लासरूम में एंटर होना तो shall I come या may I come in मैम, है ना. तो मतलब कि you are asking a permission to do the thing, तो तभी हम then only we can use may. Okay बेटा, so here look at these examples. May I use your phone and may I go out and play. Read how ओमकार ask his parents permission. तो यहाँ पे हमें ओमकार दिया हुआ है, तो ओमकार का I mean पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, और वो परमिशन किस तरीके से उसके पेरेंट्स को पूछ रहा है वो अब हम जानेंगे. Dad, may I go with my class to watch a film tomorrow. Okay, तो मतलब कि डैड मैं जा सकता हूँ मेरे क्लास के साथ वॉच करने के लिए फिल्म को कल, इस तरीके से वो पूछ रहा है. सो नेक्स्ट, मॉम, may I take some chocolates from the fridge to share with my friends tomorrow. Okay, तो मतलब कि वो डैड को इस तरह से पूछा है कि डैड may I go with the class to watch the film tomorrow. मैं जा सकता हूँ, मतलब he is asking the permission to his dad that
कैन आई गो टू द कैन आई गो टू द मूवी फॉर टुमारो, इसके लिए वो पूछ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट मतलब वो खुद पूछ रहा है, इसके लिए वो मे यूज कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट या मॉम को पूछ रहा है, मॉम मैं थोड़े से चॉकलेट्स ले जाऊं कल के लिए मेरे फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए, पूछ रहा है। नेक्स्ट, मे आई टेक सम कॉमिक बुक्स टू रीड ऑन द बस, मैं कॉमिक बुक्स लेकर जा सकता हूँ मैं बस में पढ़ने के लिए। तो ये जो सारे द ओमकार इज आस्किंग हिज पेरेंट्स टू परमिशन, सो वेदर ही वांट all those things, but he has to ask ना, मतलब कि उसको पहले पूछना चाहिए ना। जब वो पूछ रहा हो तो वो कौन सा वर्ड यूज करेगा फर्स्ट में, तो वो है मे। ओके बेटा, सो नेक्स्ट हियर सी, इमेजिन इट इज संडे, सोचो कि आज संडे है। यूज द वर्ड्स बिलो टू राइट क्वेश्चंस टू आस्क योर पेरेंट्स। सो हियर वी प्ले ए बोर्ड गेम, तो वहां पे हमें क्या लिखना होगा, मे वी प्ले ए बोर्ड गेम। ओके, तो मतलब कि हम यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं संडे सोचकर, तो हम यहाँ पे वी प्ले ए बोर्ड गेम ऐसा बोलकर दिया है, तो हम वहां पे क्या लिखना होगा, मे वी प्ले ए बोर्ड गेम। ओके, नेक्स्ट, आई मेक ब्रेकफास्ट, सो मे आई मेक ब्रेकफास्ट। Okay, so I go to the hairdresser. May I go to the hairdresser? So यहाँ पे बेटा कैन आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है सेकंड में। ओके, तो सेकंड में यहाँ पे आएगा कैन। ओके, आप करेक्ट कर लेना। So next, third, I go to the hairdressers. May I go to the hairdressers? So I watch cartoons. May I watch cartoons? Next, we go to the park to play frisbee. May we go to the park to play frisbee? So इस तरीके से, या फिर may I make breakfast? May I make? Can I make breakfast? Yes. Okay then. So we use permit someone to do what he and she is asking by saying yes, or we can refuse permission by saying no. अगर कोई हमें परमिशन पूछ रहा है तो अगर हमें मतलब कि yes बोलना है तो yes, अगर no बोलना है तो no बोल सकते हैं। So next here, look at these examples. May we borrow your story book? Yes, you may. मतलब कि अगर वो कोई पूछ रहा है आपको कि मतलब कि मैं आपकी स्टोरी बुक्स लेकर पढ़ सकता हूँ, तो तब आपको क्या बोलना होगा, मे वी बोरो योर स्टोरी बुक्स। तब अगर वो एस बोलेंगे तो यस यू मे, इस तरीके से बोलेंगे। सो नेक्स्ट, मे आई प्लक दीज फ्लावर्स, मतलब कि मैं ये फूल तोड़ सकती हूँ, तो आप बोल सकते हैं नो यू मे नॉट। अगर आपको नहीं करना है वो काम, नहीं उनको परमिशन देना है, तब आप बोल सकते हैं नो यू मे नॉट, आप वो कर ही नहीं सकते। इस तरीके से हम उनको बोल सकते हैं। So next here, read the questions. Mac ask grandma, write grandma's answer. Remember to use yes or no. तो yes और no भी हमें use करना होगा, और grandma यहाँ पे answer कर रही है। Okay, so may I dance on your computer? No, you may not. Next, may I give away your books? Yes, you may. May I eat your apple? Yes, you may. May I sing a song for you? Yes, you may. May I sit at your study table quietly and read a book? Yes, you may. Okay, so these are all the answers that given by the grammar here. Okay, so finally we have completed this each and everything, can and may. So tomorrow and I am going to explain कॉलिन। ओके बेटा, सो कॉलिन जो है वो मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगी। इसका मतलब है आपका इतना तक जितना भी वर्क है वो पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर का। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस चैप्टर यू कैन कॉल मी बेटा, एंड सो डू वन थिंग, तो आपको अभी तक मैंने जितने भी पढ़ाया है जो ग्रामर के, अगर आप वो सब कुछ पूरा अभी रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि what I want to say that आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा लास्ट में, क्योंकि एग्जाम्स इज कमिंग नियर नाउ। तो अभी वो एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन के लिए। ओके, ओनली फॉर इंग्लिश। तो इंग्लिश में इतना रिवीजन का टाइम नहीं
था, तो इसकी वजह से आप पहले के जो भी है आप साथ में साथ रिवाइज करते आइएगा, क्योंकि आप ये मत सोचना कि मैम ने रिवाइज नहीं करवाया है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको, मतलब कि एक एक ही दो दो बार मैंने पढ़ के समझाया है। तो इसकी वजह से अगर मेरे पास टाइम है तो डेफिनेटली आई डू द रिविजन, बट अगर इन केस अगर मेरे पास नहीं है टाइम तो आई कांट। ओके, सेम लाइक हियर, आई कांट, मैं पर मतलब कि रिवीजन नहीं करवा सकती हूँ अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो। ओके बेटा, सो इसकी वजह से आप जो भी लेसन अभी तक मैंने करवाया है, आई मीन फ्रॉम द लेसन आई थिंक 8th और 9th, 8th तक, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, this, that, these, those, articles, verbs, is, are, am, was, were, can, may। ओके, सो अगर मेरे पास टाइम है तो मैं पूरा आपके वर्कबुक में, आई मीन नॉट इन वर्कबुक, आपके ग्रामर बुक में जैसा है वैसा आपको मैं समझा दूंगी। अगर टाइम नहीं है तो ये पूरा मैं आपको एक ही क्लास में समझाऊंगी। ओके, आई मीन रिविजन की तरह, कि प्रोनाउंस कब यूज करते हैं बस। ओके, और एडजेक्टिव्स कब होता, क्या क्या होते हैं और वो कब यूज करते हैं, और सेम लाइक एज दैट वे द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कब यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज हमें कब लगाना होगा, एंड आर्टिकल्स, आर्टिकल्स तो आप पिछले आई मीन फर्स्ट क्लास से आप सीखते आ रहे हो। ओके, फिर भी मतलब मैं बता दूंगी, मतलब सिंपल में, कि हाँ बेटा अभी आपको ये ई आई वो यू जो वोवेल्स है, तो उसमें से आपको जितने भी आई मीन वॉट एवर द वर्ड गिवन इन बिफोर द, आपको उसमें से देखना होगा कि इज दिस अ वोवेल वर्ड और नॉट, तो आपको तब वहां पे एंड लिखना है इफ इट इज अ वोवेल, तो अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट ए हियर। ओके, सो इस तरीके का जो है शॉर्ट एंड क्रिस्प जो है, शॉर्ट एंड क्रिस्पी वे से मैं आपको रिवीजन ले लूंगी। ओके, तो पूरा का पूरा रिवीजन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो है आई मीन जो अभी PT2 के लिए हमने जितने लेसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे जो 9 चैप्टर्स लिया है, और अलॉन्ग विद दैट हमारे पास कोर्स बुक भी है एंड द वर्कशीट भी है, इसकी वजह से। ओके, सो I mean for the PT3 we definitely have a lot time, like 1 2 3 4 5 6 7, only 7 lessons ही आपको रहेंगे for the PT3। तो हमारे पास जब टाइम होगा तो तब मैं आपको बहुत अच्छे से रिवीजन ले लूंगी, लेकिन for this time I mean for the periodic test 2 तो आपको पहले से ही मैं बता रही हूँ, I mean अभी आपको तो कितना 26 ना, 6, यस, हाँ, तो अभी बहुत कम टाइम है बेटा आपको, तो इसकी वजह से अभी आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल टू डू द रिविजन ऑफ द ग्रामर, तो इसकी वजह से आपको खुद से ही करना होगा। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर और द प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो यू कैन कॉल मी एंड आस्क, बट इन रेगुलर टाइमिंग्स बेटा, जो टाइमिंग से प्लीज़ आप कोई भी पेरेंट वो नहीं फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ आप वो थोड़ा देख लीजिएगा, जो पीरियड टाइम दिया है उसमें ही आपको कॉल करिएगा प्लीज़। एंड देन नेक्स्ट कॉल इन का है, इट्स ए पोएम, पीटर डिक्सन। ओके, सो एंड द पोएम अप्रिशिएशन एंड द एनालिसा एंड द जेंट। ओके, okay then, okay, so okay then, thank you, bye bye।